Yes, class 6 students, welcome back to the video part 2 for chapter 5. So in the last video we studied that Sudha Murthy went to a tribal school and she saw there an elderly man. तो उन्होंने जब elderly man ने उन्हें एक अच्छा response नहीं दिया, then she thought that she should talk about his personal life. Perhaps he might be at ease, तो उनको थोड़ा comfort महसूस होगा तो वो अच्छे से जवाब देंगे. आगे हम देखते हैं उन्होंने क्या बात करी. Okay, it turned out that he was the live-in watchman cum peon of the school. वो कौन था? वो स्कूल का कर्मचारी भी था, साथ के साथ स्कूल का चौकीदार भी था. He would double as a tour guide sometimes, और वो कभी कभार इस टूर गाइड बन के डबल ड्यूटी भी करते थे. He was not a paid employee of either the school or the government. वो एम्प्लॉय स्कूल के भी नहीं थे और गवर्नमेंट के भी नहीं थे. His grandson was studying in the school free of cost in return for the services which the old man rendered. Actually, what happened? He was working as a peon also. He was working as a watchman also. तो वो एम्प्लॉय तो नहीं रखे हुए थे स्कूल की स्टाफ की स्कूल की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, पर जो सर्विसेज वो स्कूल को प्रोवाइड करते थे उसके बदले जो उनका पोता था उसकी फीस स्कूल में नहीं लगती थी. How long had he been living here? For many years, he replied simply. He lived in a small hut in the courtyard of the school. उन्होंने फर्दर पूछा कि आप यहाँ कब से रहते हैं, तो उन्होंने कहा मैं तो बहुत सालों से यहाँ हूँ और ये जो सामने छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है स्कूल के मैदान में, मैं यहीं रहता हूँ. By now, his attitude towards me was slightly more encouraging. अब वो थोड़ा सपोर्ट करने लगे थे. So I gently turned the conversation to the affairs of the school. He said that the state government ran the school. There were two teachers and around 50 students who came from far and near. There were the two teachers in the school, and how many was the strength of the students? It was 50. There was no compulsory uniform. The students को uniform में आना compulsory नहीं था. I was impressed by the number of children who attended the school. सुधा मूर्ति को बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने सुना कि 50 बच्चे आसपास के इस स्कूल में आते थे. After all, their parents were unschooled themselves and the living conditions were harsh. क्यों? क्योंकि उनके रहन सहन की जो कंडीशन थी बहुत ही टिपिकल थी, डिफिकल्ट थी. उसके बावजूद, और उनके पेरेंट्स कभी स्कूल नहीं गए थे, उसके बावजूद वो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे थे. Yet there was a willingness to educate their children. What are the difficulties you face in running this school? उन्होंने आगे उन चौकीदार से पूछा कि यहाँ पे आपको और क्या परेशानी होती है स्कूल चलाने में. The old man didn't say much by way of reply. He just took me to a cottage nearby and introduced me to the थांडप्पा. अब क्या हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया और वो मुझे पास की एक छोटी सी झोपड़ी में ले गए जहाँ पे कि उस ट्राइब के हेड थांडप्पा बैठे हुए थे. who seemed to be more than 90 years old, और उनकी एज कितनी थी? 90 years से ज़्यादा. He was happy to see me. वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए. I asked him the same question. मैंने उनसे सेम क्वेश्चन पूछा. व्हाट प्रॉब्लम्स डू यू फेस इन रनिंग द स्कूल? आपको इस स्कूल चलाने में क्या परेशानी आती? कम्यूटिंग टू द स्कूल वाज डिफिकल्ट ड्यूरिंग द रेन्स. उन्होंने क्या कहा कि जो लोग दूर से आते हैं उनके लिए यहाँ तक आना बारिश के मौसम में थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है. He said, besides the school clothes wouldn't dry in the rainy season, इसके अलावा बारिश में यहाँ कपड़े नहीं सूखते. The simplest of the problems and a familiar one too. ये सबसे सिंपल प्रॉब्लम थी. क्यों? क्योंकि मैं जानती थी यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर कपड़े नहीं सूखते थे. During the course of my work, I have listened to many such problems from many such people. और ऐसे छोटे गाँव के स्कूलों में मैंने ऐसी बहुत सी परेशानियाँ पहले भी सुनी थी. After acquiring a fair understanding of the people and their lives, I departed, not forgetting to thank them for their cooperation. After acquiring, जब मुझे उनके बारे में, उनके गांव के बारे में, उनके रहन सहन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई तो मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करा. एंड आई डिसाइडेड, और मैंने डिसाइड किया कि जब मैं नेक्स्ट टाइम यहाँ आऊँगी मैं कुछ बच्चों के लिए कपड़े भी ले आऊँगी और अम्ब्रेलाज भी लेकर आऊँगी. व्हेन आई वेंट अगेन इट वाज विंटर. जब मैं दोबारा वहाँ पहुंची तब ये सर्दी का मौसम था. द रेन्स वर ओवर. बारिश खत्म हो चुकी थी. नाउ द सीन वाज ट्रांसफॉर्म्ड. और जो पूरा सीन था वो बदल चुका था. इट वाज पैराडाइज. और कैसा लग रहा था? स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था बारिश के बाद वो एरिया. देयर वाज नो मड एंड नो फ्रॉक्स क्रॉकिंग. अब तो कीचड़ भी नहीं था और वहाँ पर मेंढक भी आवाज नहीं कर रहे थे. बर्ड्स वर कूइंग. द स्काई वाज क्लियर. मैनी रेयर फ्लावर्स हैड ब्लूम्ड. आई मेट द सेम थांडप्पा. ही रिकॉग्नाइज्ड मी एंड ग्रीटेड मी विद अ स्माइल. हिज आई सीम टू वेलकम मी वार्मली. और वो थांडप्पा वापस मेरे पास आया और वो मुझे पहचान गए. ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे बहुत अच्छे से वेलकम कर रहे हो. प्लीज एक्सेप्ट दीज थिंग्स विच आई हैव ब्रॉट फॉर द चिल्ड्रन हियर. लास्ट टाइम आई डिडंट नो व्हाट टू गिव देम. अब वो सुधा मूर्ति क्या कहती हैं, ये चीज़ें आप एक्सेप्ट करिए जो कि मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ. पिछली बार मुझे पता नहीं था मुझे इनके लिए क्या लाना चाहिए. आई सेड हैंडिंग ओवर अ बिग बैग टू हिम. थांडप्पा हेजिटेटेड. पहले वो थोड़ा हिचकिचाए. आई वंडर्ड वेदर ही वॉज फीलिंग एम्बेरस्ड. मुझे लगा शायद उन्हें शर्मिंदा महसूस हो रहा है. आई टोल्ड
told him, you have not asked for any gift for me. I brought this myself. आप शर्माइए मत, ये मैं खुद लेकर आई हूँ. It will help the children during the rains. Please get the clothes stitched according to their size. वो शायद कपड़ा लेकर गई होंगी तो उन्होंने कहा कि आप बच्चों के कपड़े उनकी साइज के अकॉर्डिंग सिलवा दीजिएगा. He walked into his hut without saying a word. और जो थांडप्पा थे वो अंदर चले गए बिना कुछ बोले. Okay, that's all in this part of video. Thanks for listening.